कम ऑन, आप लोगों ने ही बोला है कि टॉपिक होनी चाहिए साइकोलॉजी, सो यू ऑल कैन ऐड। क्या समझते हो आप साइकोलॉजी से? कहाँ वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? हाउ इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम? सी वी हैव listeners who are not from Hindi background, so we will talk in Hindi and English both. I want you all to say, क्या आप समझते हो? What do you understand from market psychology? How it affects you and how it disturbs you? Tell me. Anyone? Patience and decision making at time is very difficult to handle. Okay. Unable to listen. Someone has messaged unable to listen. Are you all able to listen me? Yes, Yes, absolutely. it's clear, loud and clear, loud and Okay. I can see the message. Yes, but someone has messaged me. Please, you connect it again. We'll just give 1 minute, 2 minute time and then we'll start up. आप में से कोई इनिशिएट करना चाहता है, कुछ ऐड ऑन करना चाहता है, तो he or she can add on. We will talk about psychology. We will talk about two different things. First part, we will talk about psychology. Second, we will talk about a stock and taking psychology in consideration. How psychology affects the stock and stock movement, and why you don't earn money the way you should earn, because you know technical analysis. Many of you know technical analysis, but you don't earn money. See, if you have any problem in understanding, do let me know. Sometimes I might go ahead in flow in English. So you all can let me know that you want to understand that thing in Hindi also, okay? Yeah. होता क्या है? We will start from there. Psychology क्या होती है? Kindly do analysis on INFI. Okay. See, stock analysis तो मैं दिन भर करती रहती हूँ. You all know and you all see that Telegram पे that means, you know, full day that is going on. So we won't take any stock in particular right now. I'll talk about myself. I got a question over there. So I'll talk about myself. But apart from that, we won't take any stock in particular जो आप जानना चाहते हैं अभी के लिए. I want to tell you कि साइकोलॉजी होती क्या है. एक चीज जो हमें इतनी परेशान कर रही है वो होती क्या है? वो होती है हमारे दिमाग का कीड़ा. Sex in our mind, that is psychology. Why it affects us? The reason it affects us is we excuse me, ma'am. mute कर Can लीजिए. you ask everyone to Ma'am, you can mute all of others. Only you. Okay. Now everyone is muted. You all can ask question in chat. कर लोगे? I think now everyone is in mute. See what happens in psychology. Psychology जो है वो हमारे दिमाग का कीड़ा है. And basically how it affects us.
Because see, we grow as a child. When we grow, we have a different mindset. बचपन से हमें सिखाया जाता है that we should not do this, we should not do that. तो उन सब चीजों में कि ये नहीं करना चाहिए, तो उसमें ये भी सिखाया जाता है कि we should not, you know, we should protect ourselves, we should protect our income. तो वहां पे क्या होता है, वी हैव अ हार्ड अर्न मनी. स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हो, जैसे ही आप पैसा लगाते हो आपको लगता है कि अरे ये पैसा मेरा डूब जाएगा. जैसे ही आपके दिमाग में ये डर आता है कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, बस कहानी वहीं से बदल जाती है. द स्टोरी चेंजेस फ्रॉम देयर. व्हेनेवर यू आर इन फियर कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, वो पैसा डूब ही जाएगा. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ स्टॉक मार्केट. सो अंडरस्टैंड दैट थिंग. यू कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस. और ये क्यों होता है, ये हमारे दिमाग में क्यों आता है? रीजन फॉर दैट इज कि हम बचपन से सीखते हैं कि हमें अपनी जो भी पूंजी है, द मनी दैट वी हैव, वी शुड प्रोटेक्ट दैट थिंग. तो जो हमने बचपन से 25 साल 30 साल की एज में सीखा है, वो एक दिन में तो बदल नहीं सकता है. वी कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ टाइम टू स्टॉक मार्केट. जिस दिन हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, पहले दिन से वी स्टार्ट मीन्स यू नो वी हैव अ टेंडेंसी कि हमें आज से ही सारी अर्निंग चाहिए. इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, आपने लर्निंग में कितनी टाइम दी है आपको नहीं पता है, बट पहले दिन से आपके दिमाग में होता है कि ये मुझे आज से ही पैसा कमाना है. ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप स्टॉक मार्केट को समझते हो जैसे इट इज अ लॉटरी थिंग, बट इट इज नॉट. जब इतने लोग कह रहे हैं ये बात, तो आप लोग मान लो ना, इट इज नॉट अ लॉटरी. यहाँ पे सिर्फ आप जो बोलोगे वैसा नहीं हो सकता है. दिस इज अ साइंस, दिस इज अ आर्ट जो आपको सीखना होगा. टाइम के साथ आपकी लर्निंग होगी. एंड आप एक बात ध्यान में समझिए, देखिए मैं कोई भी गूगल ज्ञान पे नहीं जाने वाली हूँ. पहली बात है, जो बातें गूगल में लिखी है वो तो आप सभी पढ़ सकते हो. फिर मेरा क्या काम है, और मैं यहाँ आके अपना टाइम और आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मैं वो बता रही हूँ जो मैंने सीखा है. ठीक है? तो कोई भी चीज जो हमने बचपन से सीखी है, पहले वो हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन है जो हमें तोड़ना है. वो हम तोड़ दें. जैसे ही द टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग कि दिस इज माई मनी, either I earn from it or I lose from it. The day we think like this, we are going to change our mindset. This only takes lots of time. You should consider stock market as a business. And when you invest in a business, you give some time. You don't want money from next day. आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो, when you start a restaurant, नेक्स्ट डे से आप ये नहीं सोचते हो कि अरे मैंने कल रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, आज से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा सारा ऑपरेशनल कॉस्ट निकल जाना चाहिए. It cannot happen. The same thing happens in the stock market also. When you start, you invest your time, you dedicate yourself, you start learning. तो कहते हैं कि मैं सरेआम मोदी को गालियां भी दे सकता हूँ और मैं मोदी को कत्ल कर दूंगा. किसी का अनम्यूट है, I have muted everyone. इस बयान के बाद आप म्यूट कर लो. Okay, so what happens जब आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो, the day you start a restaurant or you start a business, first day से वहाँ पे प्रॉफिट नहीं आता है. Your operational cost takes time to reach. So when this thing happens and it takes time, the same thing happens in stock market. यहाँ तो it will take more of a time. आप किसी भी successful trader की बात सुन लो, किसी भी stock market analyst की बात सुन लो, they have given lots and lots of time and effort to stock market so that कि वो आया बाहर निकल के. The day you change this mentality, that day your psychology will change. Why? Because आप stock market में आ जाए और कल से you will not start कि आज से मुझे earning करनी है, today I should get the profit. No, it won't happen. जिस दिन आप ये सोच लोगे कि नहीं, मेरा जो पैसा है वो पैसा कुछ दिन टाइम लगेगा. Yes, I'll give time to myself. I'll give time to my learnings, my education. Then only I can earn. You understand one thing. You have spent so much of time in the market. You have spent so much of time in your studies, in your graduation, in your technical degree, and then you reached at a level that you started earning in a company or you started a business. Then how can you expect this thing कि ये जैसे ही मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ अगले दिन से मुझे प्रॉफिट होगा? It won't happen that way. स्टॉक मार्केट भी सेम वैसे ही है, that needs your time and dedication. But yes, once you are into it,
that will give you money. That will give you money, and the money that is, beyond your expectation, but it takes time. It takes lots of time. So you need to give that kind of dedication. You need to give that kind of perseverance in the stock market. You have to understand कि हाँ मेरे को टाइम देना है, सीखना है, और जब तक मैं सीख ना जाऊं अच्छे से तब तक मुझे स्टॉक मार्केट छोड़ना नहीं है. क्यों कहते हैं कि only 1% of the trader are profitable? Only because of this thing. Because trader don't give time, and 1% of the trader actually sustain in the market, rest all leave the market. Why it happens? The reason for this is only this thing कि वो लॉस देखते ही उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, दे स्टार्ट शिवरिंग, उनके हार्ट बीट तेज हो जाते हैं. ऐसा आप सभी के साथ होता होगा. Why it happens like this? Only because you means the day you start losing, आपका दिमाग खराब हो जाता है. You start thinking negatively, and next day, after few days of loss, you will say that stock market is not my cup of tea. Why? Because जो भी आपने सोचा था या जो भी बाहर की एक फेरी टेल थी, there was a fairy tale about stock market that I can earn this thing, I can make this much of money from next day onwards and all, that has changed. That has changed. Why that has changed? Because you came over here thinking कि मुझे पैसा बनाना था, पर यहाँ जो भी पैसा लेके आए थे वो चला गया. So if you can tolerate yourself and you can change yourself, then only you can sustain in stock market. I can tell you कि 100% of the stock market investors would have lost money initially. उसके बाद ही उन्हें profit हुआ होगा. Because loss over here is not a loss, that is a lesson, that is an investment in your learnings that helps you to develop your psychology. So whenever you have that kind of mentality develop, वो time लगता है. जो चीज आपने बचपन से सीखी है उसे unlearn करके you have to learn something new. When you are going to learn something new, it takes time. So you should be able to grasp that thing, then only you can sustain in the market. This is what psychology is according to me, nothing else. When you change yourself according to stock market, because stock market, जैसे आपने बचपन में पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, whatever you studied, all those things that you studied changed your mindset. अब आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपका माइंडसेट बनाना है, so that you can earn over here, and that earning takes time. Every trader would have lost money initially. फिर ही वो एक लेवल पे पहुंचता है जहां पे उसे प्रॉफिट होना शुरू होता है. सो फर्स्ट लेवल इज losing money, learning lessons. Losing money, learning lessons. Second level is that you are losing less, but you are earning and learning. The third level is that you are earning more, you are losing less. And then comes a level where you are a pro trader. So these are 4 levels of the stock market. आप एनालाइज करो आप कहाँ पे हो और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है. आई विल टेक दिस क्वेश्चन. मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी? एक्चुअली मैंने अपने लास्ट जो इंटरव्यू था उसमें भी बोला था मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी, बट आई विल अगेन गिव अ ब्रीफ ऑफ दैट. फर्स्ट यू ऑल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट. एक दिन में आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, वैसे ही एक दिन में आपका स्टॉक मार्केट का बिजनेस भी ग्रो नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट ग्रो, रादर इट विल टेक 5 years टाइम. आप मान के चलो कि 5 साल का टाइम लगेगा, तो क्या आप रेडी हो 5 साल का टाइम देने के लिए? बस आप ये समझ लो कि अगर 5 साल के टाइम तक आप स्टॉक मार्केट में टिक गए तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के पैसा कमा लोगे. बट वो टिकने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन लॉस करके टिक रहे हैं. वो टिकने का मतलब है कि यस लॉस तो हो ही रहा है. लॉस, दे आर ओनली 2 things, आइदर लॉस और प्रॉफिट. तो जब 2 चीजें एक बिजनेस में है तो दोनों होनी ही है. मिस्टेक्स भी बहुत होंगी क्योंकि आपका माइंडसेट टोटली डिफरेंट है, स्टॉक मार्केट का माइंडसेट टोटली डिफरेंट है, तो मिस्टेक्स भी होंगी. बट यू हैव टू टेक दिस पॉजिटिवली एंड यू हैव टू मूव अहेड. सो दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी इज. No one should leave stock market because कि वो पैसा नहीं कमा सकता है. ठीक है. Now the next point. अच्छा, मुझे किसी ने पूछा आपने कितना लॉस किया है. मैंने बहुत लॉस किया है
इतना लॉस किया है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, और मुझे बहुत टाइम लगा उसे रिकवर करने में। दोनों चीजों में बहुत है, अब आप अपने हिसाब से बहुत समझ लो। वेरी पर्सनल क्वेश्चन एंड आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन कि काफी टाइम लगता है रिकवर करने में, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हो, आप स्टार्ट करते हो, तभी आपकी लॉसेस शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने कमाया 5 रुपए और आप खुश हो गए, और आपने जो भी कमाया था सारा आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। फिर क्या होता है कि वो 10 रुपए पूरा डूब जाता है। उसके बाद क्या होता है, यू ट्राई टू रिकवर दैट मनी, और वो रिकवर होते ही होते होते काफी टाइम लग जाता है। जैसे जैसे वो टाइम लगता है, क्योंकि आप जब लूज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, आपका मोटिवेशन भी चला जाता है, तो उसे गेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, कि मैंने कमाया 5 रुपए और मैंने गवाया 10 रुपए। जो मेरे पास पैसा था और जो स्टॉक मार्केट ने मुझे दिया था, दोनों चला गया। नाउ व्हाट हैपेंस, यू हैव अ जर्नी जिसमें आप चाहोगे कि मुझे वो 10 रुपए वापस मिल जाए, पर वो 10 रुपए की जगह 20 रुपए जाएगा, फिर 30 रुपए जाएगा, फिर 40 रुपए जाएगा, एंड फिर आप सोचोगे कि अब ये 40 रुपए मैं कैसे कमाऊंगा। So that is what you have to learn in psychology. And actually, believe me, it takes lots of time to learn psychology only. And एक और बात आपको बता दूं, no one is going to understand you. अगर आप बोलते जाओगे कि मेरा सारा पैसा डूब गया, मेरा सारा पैसा डूब गया, तो आपके घर वाले सारे लोग बोलेंगे कि ये सट्टा लगाता है, और ये सट्टा लगाती है, और दिस इज गैम्बलिंग, यू शुड कम आउट ऑफ इट। बट दैट इज नॉट द केस। आपको ये समझाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में वही समझ सकता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, सब कोई नहीं समझ सकते हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न इन साइकोलॉजी। No one will support you fully in for stock market, because stock market अभी भी इंडिया में fully acceptable नहीं है। तो you should be on your own कि yes, I have to do this। अगर मैंने इसे as a topic लिया है तो I have to achieve this। और वो अचीवमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम आए, that you will have to face, that you will have to face, no other way is there। आप जल्दी समझ जाते हो तो आप ज्यादा समझदार हो, आप जल्दी नहीं समझते हो तो it takes time। बट ऐसा नहीं है कि कम समझदार लोग इसमें नहीं टिक पाते हैं। आप देख लो कि आप अगर सबकी ऑटो बायोग्राफीज पढ़ोगे तो आप समझोगे कि देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट इवन ग्रेजुएट, बट दे आर अर्निंग लैक्स एंड लैक्स इन स्टॉक मार्केट। सो दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट इज। This is stock market psychology. You all can write your queries in chat. I'll also try to see those things also. बट आप लोगों को एक प्लान बनाना होगा। साइकोलॉजी की एक और पार्ट होती है कि यू हैव टू मेक अ प्लान, यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान, कि मेरा इतना % लॉस हो गया तो मैं इस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, या मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। सो दैट यू विल हैव टू मेक इफ यू वांट टू सस्टेन इन स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास लाख रुपए है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मेरे को अगर एक दिन में 5,000 का लॉस हो रहा है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव ओनली 95,000 रुपीज लेफ्ट एंड यू हैव 20 ट्रेडिंग सेशंस टू स्पेंड इट। सो यू नीड टू डिवाइड इट प्रॉपर्ली, सो दैट आप अपने उस सेशन में उसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके अर्निंग कर सके। आप उससे ज्यादा लॉस लेने के लायक नहीं है इफ यू हैव ओनली 1 लाख रुपीज। सो यू शुड ऑलवेज बी वेयर कि आपके पास इतना ही पैसा है, जो करना है इसमें ही करना है। तो you cannot afford to lose all your hard-earned money in stock market in single day. So be patient. पैसा बनेगा, but it takes its own time, it takes its own effort. एक दिन में कोई भी राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकता है, तो why to try for that? Try to be yourself. आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जितना IQ, आप उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। जरूरी नहीं है कि आप राकेश झुनझुनवाला ये काम करते हैं तो मैं भी वो काम कर लूं, वो अगर सिर्फ स्टॉक लेते हैं, वो अगर फ्यूचर्स लेते हैं तो मैं भी ले लूं। आप अपने लेवल्स देखिए, आप अपनी कैपिटल देखिए, आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए, देन ओनली जंप इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। डोंट जंप ब्लाइंडली। ओके, अब आगे हम बात करेंगे एक प्लान की, जो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आपको करना क्या है। आपको मैं एक केस स्टडी के हिसाब से समझाऊंगी, so that you all can understand what you should do. सपोज आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ इक्विटी लेना है,
You want to buy only equity. So what you need to do for that? अगर आपको सिर्फ इक्विटी लेना है तो आपको अपने मनी को डिवाइड करना होगा. मैं कोई बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती हूँ, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल समझाना चाहती हूँ. आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड सिंपलेस्ट थिंग व्हाट स्टॉक मार्केट एक्चुअली, व्हाट हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट. आपको अपने मनी को पहले डिवाइड करना होगा. रीजन फॉर दिस डिवीजन वो समझना बहुत जरूरी है, जो कहीं डिस्कस नहीं होता है. There are smart people in the stock market and they don't want you all to earn. They don't want retailers to earn money. Why they don't want? Stock market is a mechanism where buying and selling happens. When there is a buying and selling, one has to be a buyer, one has to be a seller. You all will be in the category of being fool because you are retailer, I am retailer. And these smart people play with our mind. There is a mindset game, you understand, my friend. There's a mindset game, you understand this thing, that any retailer won't earn that kind of money जब तक वो स्मार्ट नहीं होगा. उसकी माइंड स्मार्ट का मतलब कपड़ों से नहीं, माइंडसेट से स्मार्ट. Why? Because these smart people don't want you to be on a earning part. So they, if they are buyers, you have to be seller, and they play with your hard-earned money. So that is the reason you need to make a plan. What happens? There is why you all people go for news outbreaks and all. What happens that time? That is the psychology you should understand. That is the operator scheme you should understand. Whenever there is a news that is outbreaking, at that time क्या होता है? एक न्यूज आने के पहले क्या होता है वो आप समझो. एक न्यूज आने के पहले स्टॉक मार्केट में जितने भी बड़े लोग हैं उनको न्यूज पहले से पता होता है. अंदर की बात होती है, सारे बड़े लोगों को पता होता है. दे हैव ऑलरेडी बॉट दैट स्टॉक, एंड उसके बाद न्यूज आउटब्रेक होता है. जैसे ही न्यूज आउटब्रेक होता है, कौन घुसेगा? रिटेलर. मुझे कितने टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं, मैम ये न्यूज आया है, वो न्यूज आया है, ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है. व्हाई इट हैपेंस? समझो इसका लॉजिक. ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे लिख नहीं सकती हूँ, कहीं पे लिख नहीं सकती हूँ, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस दैट यू शुड अंडरस्टैंड. व्हाट हैपेंस? एक स्टॉक मार्केट में जब ये सारी एक्टिविटी चल रही होती है तो यू विल नेवर कम टू नो, बिकॉज दे ट्राई टू मैनेज द प्राइस. वो एक रेंज में स्टॉक के प्राइस को मैनेज करते हैं. आपको वो खरीदने को तब मिलता है जब न्यूज आउटब्रेक होता है. जैसे न्यूज आउटब्रेक होता है तो चीजें होती है. आइदर द इन्वेस्टर, उसने अपना पैसा बना लिया है, अब उसे उसमें से निकलना है, तो ही वांट्स अ बायर एंड ही विल बिकम अ सेलर. दिस विल हैपन. और इफ ही थिंक्स कि इसमें ऑपरेटर्स एक्टिविटी करनी है, इसका प्राइस को हमें बलून की तरफ फुलाना है, तो व्हाट ही विल डू? ही विल जस्ट राइज द प्राइस. ही हैज enough money to do all these things. अगर वो करोड़ों शेयर ले लेगा तो आप लोग कहोगे अरे ये शेयर तो भाग रहा है, मेरा मिस हो गया, मुझे खरीदना है. आपके पास 1 लाख रुपए होंगे, आप 1 लाख पूरा उसमें लगा दोगे, पैसा बढ़ेगा भी, बट आप निकल नहीं पाओगे सही जगह पे. Entry and exit both are part of your stock market investing thing, and you should understand that thing. You won't be able to exit that thing because just then वो इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर निकलेगा, उस दिन से वो लोअर सर्किट लगाएगा और आप उसमें से एग्जिट नहीं कर पाओगे. This happens. I think आप सबके साथ होता होगा, आप चैट में लिख सकते हो. Why it happens? Because they always want you to be on that part which is losing. You have to become smart, my friend. That is the logic of stock market. ये समझना बहुत आसान है, पर इसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है. Yes, TTML is the example. अभी तक TTML खराब नहीं हुआ है, but I think कि अगर मंथ एंड तक ऐसे ही रहा तो वो खराब हो जाएगा. But it has given enormous success. I bought it at 6 rupees and I have given that recommendation on Twitter also. I don't know how many of you took that time. जो भी Twitter पे थे उस समय मेरे साथ, many of you took TTML at that time. And it has given enormous kind of money to me and to all the people who invested at that time. So you have to understand, you have to follow only one thing. I also used to follow fundamental analysis, technical analysis, news outbreaks, CNBC hour, Z business, Falana, Dimkana, everything. What happened? I lost lots of money. All my salary used to go in my stock market, and I lost all the money. What happened? And why it happened? This happened only because I used to follow a number of things.
Then I zeroed upon one thing, that was technical analysis, and I knew that this is the only one thing that will protect me. And actually it helped. When you go and see TTML in last 1 year's time, maybe October last year, 2019 or 20 TTML, and you see the this thing, fundamental of that stock, you will find that no fundamental, nothing. Only technical was good. And that was the reason I bought it. And that was the reason it went there. फंडामेंटल तो आज भी अच्छा नहीं हुआ उसका, पर मार्केट कैप बहुत हो गई, ओनली बिकॉज कि वो भागता ही गया, उसमें ऑपरेटर्स एक्टिविटी हो गई, और जिस दिन बड़े आदमी ने भेजा उस दिन से आप नहीं बेच पाए उसको, अभी वो लोअर सर्किट लगा रहा है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. जब आपको दिख जाए वो चार्ट पे कि वो खराब हो गया, निकल जाओ. जब आपको दिख जाए कि वो अच्छा हो गया, आप ले लो. If you follow fundamental, if you follow news, you won't be able to make money. That's very sure. ये गलती मैंने की है. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक गूगल और ये सब जो भी है वो सब मैं बात नहीं करने वाली हूँ. जो मैंने गलती की है, जो मैंने सीखा है, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट थिंग. टेक इट लाइक दैट ओनली. दैट विल शॉर्टन योर लर्निंग कर्व. दैट्स इट. जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि सारी चीजें फॉलो करने से पैसा नहीं बनता है, उस दिन आप पैसा बनाने लगोगे. एटलीस्ट आप लॉस करना कम कर दोगे. योर लॉस विल कम टू स्टैटिक. इसलिए that is the reason why you should invest your money in chunks. That was my first lesson that I learned from stock market. If I invest all the money in just one stock, TTML, what will happen? वो सर्किट लगा रहा है, अपर सर्किट वो नीचे आने लगा, लोअर सर्किट लगाने लगा, और मैं क्या सोचने लगी कि अब मेरा पैसा तो सारा फंस गया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं. मैं बस यही सोचती रहूंगी, आई विल हैव अ इमोशनल सेटबैक, मुझे हार्ट बर्न्स होंगे, मुझे तकलीफ होगी, बहुत कुछ होगा. So why to do that? You should not be like that. You should always invest in chunks. You should never invest in one stock. So that is first learning. आप लोग गलती मत कीजिए. I am there to help you out. I try to answer all your questions on Twitter, Telegram, but you should not do this mistake. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती है और हम वो गलत कर रहे होते हैं क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता है. मैंने भी ऐसे ही सीखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं क्या क्या गलती कर रही हूँ. एंड देन आई रियलाइज दैट मैं अभी भी गलती करती हूँ, एंड आई एक्सेप्ट इट. इसमें कोई गलती नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करूँ. इंसान हूँ, गलती तो करूंगी ही. बिजनेस में लोग गलती नहीं करते क्या? करते हैं ना, सुधारते हैं उनसे. That's it. So this is what psychology is, that you should understand, that you should keep in your mind, you should learn according to that. And ये साइकोलॉजी जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो गई कि आपको पैसे चंक्स में लगाने हैं, आप हो सकता है आपको अमीर बनने में, आपको वेल्थ क्रिएशन में टाइम लगे, यू स्पेंड टाइम to become rich, but still you will become rich one day. Why? Because you are taking calculated risk. You are disciplined. When you are disciplined, stock market will respect. But if you are indisciplined, आप बहुत बार फंसोगे. या वो स्टॉक ऑपरेटर्स एक्टिविटी में फंस जाएगा, या वो स्टॉक का प्रोमोटर भाग जाएगा. अगर मान लो you have 1 lakh rupees and you have distributed in 10,000, एक का प्रोमोटर भाग गया, वो पैसा आपका 10,000 वेस्ट हो गया. एक स्टॉक में आपको ऑपरेटर एक्टिविटी ने मार दिया, फिर भी आपके पास 80,000 है. बट अगर आपने सिर्फ एक ही स्टॉक में 80,000 लगाया, उसका प्रोमोटर भाग गया, वो स्टॉक नॉन ट्रेडेबल हो गया, आप क्या करोगे? दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज. So understand in a plain, simple layman terms what is risk management, what is human psychology, and how it affects our stock market psychology. How both are different. You see the loss, you feel like what has happened to me, मैं इसके लिए तो नहीं आया था. But actually loss is a part of learning. जिस दिन आप लॉस देख के घबराना कम कर दोगे या खत्म कर दोगे, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बनने लायक हो जाओगे. भले आपके पास पैसा ना हो, फिर आप पैसे का जुगाड़ करो. आप अपने सैलरी से बचाओ पैसा. कभी स्टॉक मार्केट के लिए अपना जॉब तो नहीं छोड़ना चाहिए. जब आप एकदम प्रॉपर ट्रेडर बन गए, तभी आप अपना जॉब छोड़ो. Because you cannot go ahead without money. You have a limited capital, that is your hard-earned money.
So understand all these things. This is what psychology is. अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. आई होप कि आप लोगों को ये सेशन थोड़ा समझ में आया हो. बाकी क्वेश्चंस जो है हम टेलीग्राम पे, आई एम फुल टाइम एक्टिव ऑन टेलीग्राम एंड ट्विटर. यू ऑल कैन पोस्ट ऑल योर क्वेरीज. आई विल टेक द क्वेश्चंस, बट यू शुड अंडरस्टैंड. और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज आई फॉरगॉट. यू शुड बी अहेड ऑफ हर्ड मेंटालिटी. व्हाई? जो चीजें आपको दिखाई जाती है वो आपको दिखाई जाती है. आपको चार्ट में दिख रहा है कि स्टॉक वीवैप के पास आ रहा है, स्टॉक उससे नीचे गिर रहा है, ये सब आपको दिखाने के लिए हो रहा है. वो जो टेक्निकल इंडिकेटर आपने पढ़ा है वही टेक्निकल इंडिकेटर ऑपरेटर को भी पता है. तो बी वेयर ऑफ दैट. यू हैव, आप भी ऑपरेटर्स एक्टिविटी में फंस सकते हैं, बट आपको बचना है. इंट्राडे में ये बहुत होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और स्टॉक भाग जाएगा, बट यू शुड कीप योर स्टॉप लॉस. एट एनी पॉइंट इन टाइम यू शुड कीप योर स्टॉप लॉस. और आप ये बात समझो कि ये जो भी चीजें, जितनी इंडिकेटर आपको मालूम है, वो सारी इंडिकेटर ऑपरेटर को भी मालूम है. और ऑपरेटर अपने हिसाब से उसे ऑपरेट करता है. ही हैज गॉट दैट मनी, दैट पावर. उसे ही हम ऑपरेटर बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स को चलाता है अपने हिसाब से. तो वैसे मार्केट में आपको बच के रहना है. वो आपको समझने आना चाहिए. दैट इज ऑल साइकोलॉजी दैट यू शुड डेवलप एंड यू शुड लर्न. I can see some questions. Let me see now questions. Herd mentality पे हम और भी बातें करेंगे आगे. We will try and arrange another meeting if you all are interested. We will talk on this because this is very important. अगर आप वही कर रहे हो जो बाकी जनता कर रही है तो आप पैसे नहीं कमा सकते हो. मेरे स्टॉक्स जो आप ट्विटर पे देखते हो या टेलीग्राम पे देखते हो, कितने लोगों ने उनका नाम सुना होगा. बहुत से स्टॉक्स का तो जब मैं हैशटैग करके नाम लिखना चाहती हूँ तो वो नाम ही नहीं आते हैं हैशटैग करके, क्योंकि उसने कभी डिस्कशन ही नहीं किया है किसी ने उसका, तभी वो हैशटैग करके नाम नहीं आते. व्हाई? बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट दोज जेम्स व्हिच आर हिडन. जहां पहले ही बहुत कुछ हो चुका है वहां पे आपका पैसा नहीं बनेगा. आपका पैसा वहां बनेगा जहां कुछ नहीं हुआ है. दैट इज वेरी गुड. दैट लुक्स वेरी गुड एंड नो वन नोज इट. सो अंडरस्टैंड दैट थिंग. नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस. ये बातें मैं करने लगी तो 1 घंटे 2 घंटे, it will take more time, but I'll take on questions. Then we'll come on stocks also. Okay. मैंने स्टार्ट कब किया था? मैंने स्टार्ट किया था 2013 में. 2013 में I was working and I started from there. I made enormous money in one stock which is now a penny stock, Yes Bank at that time. उस समय मुझे किसी ने बस बोल दिया था कि आप ले लो, और जब उसका पैसा बन गया तो फिर सेम वही हुआ. मैंने उस पैसे को 4 गुना देखा. आई वाज शॉक्ड कि ऐसा भी होता है कि पैसा आपका 4 गुना हो जाता है. एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग मनी. द सेम स्टोरी. एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग मनी. फिर एक टाइम आया मैंने बहुत पैसा लूज किया. देन आई स्टार्टेड knowing, understanding what stock market is, what mistakes I have done and how I should recover it. So this is a process. Now I have been in stock market for 9 years. Okay. Questions, कब stock market में enter हुई? I have answered that question. कितना loss किया? I have answered that question. Sustain, how you sustain your motivation after losing? The same thing. I take loss as a lesson, not as a pain, not as a punishment. Obviously that is a punishment for me, but that why I got that punishment, I want to understand that thing. स्टॉक मार्केट से मैं भी एग्जिट करना चाहती हूँ. कई बार मैंने सोचा कि मुझे निकल जाना चाहिए बिकॉज आई कैन नॉट मेक मनी, आई एम लूजिंग, आई एम दिस दैट, बट देयर इज सम फोर्स व्हिच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस, कि मुझे लर्न करना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है. दैट्स इट. And once you have this feeling in you, you have this passion in you, आपके लिए और कुछ भी important नहीं होता है. You are just having one feeling in you कि चाहे जो भी हो जाए, have to learn. Loss भी हो रहा है तो learn करना है. आखिर loss क्यों हो रहा है? You have to understand that thing, that why I am making loss, why others are not making loss. I have to read those biographies and all and to understand that कि मेरी psychology कहाँ गलत हुई. Technical तो मेरा सही है पर psychology कहीं गलत हुई, तो वो क्या गलत हुआ? So that is the motivation behind it. If you have a strong power in you कि मुझे ये सीखना ही है तो आप सीखोगे ही, फिर आप नहीं निकलोगे स्टॉक मार्केट से बाहर. ओके,
Next question. Yeah, I had another source of income. I was working. I was a full-time banker at that time, and that I left for my stock market. At one point of time, I was very successful in that, but I had to leave because I had to pursue my passion in stock market. वर्कशॉप ज्वाइन किया था, किसी को फॉलो किया, बहुत से लोगों को फॉलो किया, बहुत से लोगों से सीखा। हर एक के सिखाने का तरीका अलग होता है, हर एक कोई कुछ नया सिखाते हैं, कुछ अलग सिखाते हैं। बहुत से लोगों से सीखा मैंने। आप अपने आप लर्निंग नहीं होती है मेरे दोस्त, लर्निंग के लिए आपको एक मेंटर चाहिए होता है। यू ऑल नो माई मेंटर्स, बहुत सारे मेंटर्स आपको मालूम है मेरे। ओके, और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज द राइट अप्रोच टू प्रोग्रेस लर्न इन स्टॉक मार्केट? हाउ? वही तो मैं बता रही हूँ तब से। ट्रेड सेटअप जो है इसकी, दैट इज ओवररेटेड। अरे आपके पास कोई ट्रेड सेटअप नहीं होगा, आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम होगा तो भी आप पैसा कमा लोगे, बट आपका दिमाग सही होना चाहिए। साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट हो भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस बुक नहीं होता। सुपर सुपर, बहुत बहुत मुश्किल है लॉस बुक करना, बट करना पड़ेगा। पैसा चला जाएगा तो क्या करोगे बताओ? इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, यू लूज ऑल द अमाउंट, व्हाट विल यू डू? यू टेल मी। आप लोग क्या करोगे अगर आपके पास जो भी पैसा है वो चला गया? व्हाट विल यू डू? किसी से मांगोगे, लोन लोगे? लोन लेके स्टॉक मार्केट में नहीं काम होता। स्टॉक मार्केट में उसी पैसे से काम होता है जिस पे आपको थोड़ा कम टेंशन आए। जो पैसे पे आपको टेंशन आएगा ना कि ये चला जाएगा, वो चला ही जाएगा। मान के चलो वो चला जाएगा, वो नहीं बचने वाला है। वही पैसा बचेगा जिसमें आप सोच के रखो कि ये पैसा डूब गया तो कोई बात नहीं, मैंने बिजनेस में लगाया है, मुझे कुछ लर्निंग मिलेगी, वही पैसा बचेगा। इसलिए लॉस बुक करना सीखिए, स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, दिमाग में नहीं सिस्टम में। हिट हो गया गया। Every time you are making a loss, you are losing your capital. सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एग्जैक्ट कितने टाइम लगे? 6-7 years, 7 years? सिर्फ बाइंग करते हो ऑप्शंस? नो, आई डू एवरीथिंग, आई एम अ हेजर। दरवक सर से मेरी मेंटरिंग हुई थी 2018-19 समवेयर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। How to find multi-bagger? Very difficult to teach you right now, but I'll try to guide you on Telegram. Very good. दरवस को फॉलो किया तो सक्सेसफुल हो गई, वेरी गुड। every question almost I have answered. क्वेश्चन अब स्टॉक से रिलेटेड आ रहे हैं, वो भी देखते हैं। थैंक यू, यू लाइक द सेशन, आई गॉट सम कॉम्प्लीमेंट। क्या क्राइटेरिया मैं रखती हूँ? मैंने आपको बोला अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करो, पैसा कमा लोगे। बहुत सारी चीजें करने जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। डू वन थिंग एट अ टाइम, और जब उसमें सक्सेसफुल हो गए तब दूसरी चीज में कूदना है। अगर आप इक्विटी में सक्सेसफुल हो गए तो आप फ्यूचर्स में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे। उसके लिए पैसा बहुत लगता है, दिमाग बहुत खर्च होता है, सर में दर्द बहुत होता है, दिल में हार्ट बीट तेज हो जाती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंस। इक्विटी में कमाओ ना, पैसा कमाने से मतलब है ना। डू इट इन इक्विटी। व्हाई यू वांट टू गो एवरीवेयर? डोंट ट्राई टू बाय OTMs. I am tired of saying this thing, out of the money. Please options buy नहीं कीजिए। आउट ऑफ द मनी आपके पैसे को जीरो कर देगा। वो हो सकता है किसी दिन लॉटरी लग जाए, किसी एक दिन, बट हर दिन वो लॉटरी नहीं लगती है। ओके, कंप्लीट अबाउट द प्लान। विच प्लान? रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड पॉइंट। ओके, I'll complete it.
Can you explain about cognitive? Okay. Capital allotment in penny stock. Very nice question. पेनी स्टॉक में आपके कैपिटल का 2%, 5% इतना ही लगना चाहिए. यू कैन डू पिरामिडिंग इन पेनी स्टॉक बट नॉट टू बाय एवरीथिंग एट वन. आई गिव यू मेनी एग्जांपल्स. टीटीएमएल मैंने बाय किया था तो मैंने एक बार में करोड़ों का नहीं बाय किया था, लाखों का भी नहीं बाय किया था. अरे मैंने लाखों का उसको बाद में भी बाय नहीं किया था, 20 लाखों का बाय किया कि मैं उसमें 10 लाख रुपए लगा देती हूँ और मैं एक ही बार में करोड़पति बन जाऊँ. सब नहीं होता मेरे से. मैं हमेशा कैलकुलेटेड लेती हूँ, इतना ही अमाउंट लेती हूँ जितना मैं लूज करने को तैयार. कभी आप ऐसा मत करो कि आप सारा कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा दो. नेवर. बार बार मैंने बोला है. तो पेनी स्टॉक, जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो जो 10 रुपए का है, तो आपके पास अगर 1 लाख है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 5-7 हजार का खरीदिए. इनिशियली आपके पास बहुत कैपिटल तो होगा नहीं. जिसके पास बहुत कैपिटल है वो चाह सकते हैं कि वो थोड़ा बड़ा खरीदे, बट पर जैसे जैसे वो अच्छा करने लगे, यू हैव टू डू पिरामिडिंग इन दैट स्टॉक. जैसे जैसे वो बढ़ने लगे, यू हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी. दिस इज द ओनली मेथड वेयर यू क्रिएट वेल्थ विदाउट हैविंग पेन्स. तो डू दैट थिंग. रिस्क मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. रिस्क मैनेजमेंट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई विल गिव यू सम पॉइंट्स कैसे आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट आई विल टेल. टफेस्ट डिसीजन एवर. टफेस्ट डिसीजन है कि मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूं, जो मैं नहीं करना चाहती. ऑप्शंस पे भी मैं लूंगी सेशन. You following any technique chart pattern? Definitely I follow technique chart pattern. There are many mentors. You know my mentors. Especially in options, I have learned differently. Very difficult to recover. Very nice. I know it's very difficult, but time. Thank you for the compliments. अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, I'll take more sessions. This was my first session on psychology and I was amazed to see so many people wanted to learn about psychology, because मैं तो देखती हूँ कोई साइकोलॉजी की बात ही नहीं करता है. मैं तो आज पहली बार सोच रही हूँ कि आप लोग इतना इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में जो एक्चुअली में आपको पैसा बना के दे सकता है. टेक्निकल आप कहीं से भी सीख लोगे. कितने टीचर्स हैं टेक्निकल के? कोई ऐसा टीचर है जो साइकोलॉजी सिखाता है? बिकॉज साइकोलॉजी के साथ सीखना बहुत जरूरी है. अगर आप साइकोलॉजी के साथ नहीं सीखते हो तो आप पैसा नहीं बना सकते हो. आपने जो चीजें बचपन से सीखी है वो अनलर्न करके एक टोटली न्यू चीज लर्न करनी है. एक सेट ऑफ पैटर्न लर्न करना है. वो कैसे होगा? दैट विल टेक टाइम. थैंक यू कि आपको सेशन पसंद आया. आई एम गेटिंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. When to book profit in winning trade when the trend changes? That is the answer. कि विनिंग ट्रेंड में कैसे आप प्रॉफिट बुक करोगे. My family supported me in trading. Personal question, and the answer is this. There are very few families who support in trading. So that is there. I am lucky, touch wood. Some books for reading to learn. You can read, see if you are a basic learner, जो सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाता है, तो आप प्रोसेनजीत पॉल का बुक भी पढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल सीख लोगे, कुछ ना कुछ टेक्निकल सीख लोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, लर्न फ्रॉम माइकल कोवल ट्रेंड फॉलोइंग बुक. मैं हमेशा बोलती हूँ वो आप पढ़ के देखो. यू विल लर्न a lot about trend following. वो trend following आपको इक्विटी में भी काम आएगा, फ्यूचर्स में भी काम आएगा, ऑप्शंस में भी काम आएगा. बट ऑप्शंस के लिए डिफरेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा. पहले वहां तक आप पहुंचो. You should learn Ivan Biaggi's book. That is a psychology book or masterpiece in psychology. You should read that thing. I have been telling these things on Twitter. I'm diehard fan of those people. More session on future. Okay, awesome session. Thank you. I'll give you answer on cognitive bias also, because that is a different topic जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सब नहीं समझ पाएंगे अभी. That is not a layman's thing, so I'll do that also. Telegram link is given in my bio on Twitter. That I'll tell you that आप वहाँ पे से देख सकते हैं. Which time frame on intraday? Okay, intraday is very much tough and intraday is not that easy.
सो इंट्राडे में आपको क्या करना चाहिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए, और जब एंट्री करनी है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कीजिए। अब ये बात आपको अभी समझ में आएगी नहीं, बिकॉज वो आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, बट आई टेल यू, आई टेक अनदर सेशन ऑन दिस एंड आई टेल यू कि इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करनी है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम देके 15 मिनट के लिए कैसे आप एंटर करोगे, एग्जिट करोगे, वो सब मैं बताऊंगी आगे चल के। 1 मिनट कौन, 1 मिनट कौन यूज कर रहा है भाई? भैया अगर आपको शौक है कि आपको पैसे सब लुटाने हैं तो किसी गरीब को दे दो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मत यूज करना, जो भी है सब चला जाएगा। अगर आप बहुत लकी हो तो कुछ कमा लोगे, और एल्स इट विल गो। सो प्लीज नेवर ट्राई टू डू दोज थिंग्स। ओके आई थिंक, हाँ मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, आप लोग सबको भी स्कैल्पिंग कराती हूँ, जो मेरे टेलीग्राम पे हैं सभी स्कैल्पिंग करते हैं, 15-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग करते हैं, दैट इज वेरी गुड। आपका रिस्क भी बहुत एकदम 10-20 पॉइंट का लॉस होगा तो होगा, 20-25 पॉइंट पैसे मिल गए निकल लिए, दैट इज स्कैल्पिंग। इसमें आप लॉट्स बढ़ाओगे, जैसे ही आपका कन्विक्शन बढ़ेगा यू विल डू मोर लॉट्स, दैट्स इट, दैट इज स्कैल्पिंग। आपको एकदम से लाखों नहीं कमाना है, बट यू विल कीप ऑन अर्निंग। आई डू, मैंने बोला मैं सब कुछ करती हूँ, कभी कुछ जिस दिन का जो दिन है वो करती हूँ, इतने साल दिए हैं, कुछ तो सीखने को मिला है, तो मैं सब कुछ करती हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। विल टॉक अबाउट स्टॉक आल्सो। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, आई हैव बीन गेटिंग सम कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया। हम एक स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो मैं शुरू से बोल रही हूँ और अभी तक नहीं कर पाई हूँ। स्टॉक के बारे में मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, मैं आपको उससे रिलेटेड एक साइकोलॉजी बताना चाह रही हूँ। होता क्या है स्टॉक मार्केट में, वही बस बताना चाहती हूँ। बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट जो मैं साइकोलॉजी में देना चाहती हूँ लगभग सब दे दिया है। साइकोलॉजी एक दिन का टॉपिक नहीं है, इसे सालों लगते हैं डेवलप होने में। अगर मैं आज सारा ज्ञान निचोड़ के भी रख दूंगी तो भी आप लोग नहीं एक दिन में सीख पाओगे, इट विल टेक टाइम। आप एक स्टॉक मार्केट में SKM एक करे, मैं स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन तो बताती रहती हूँ टेलीग्राम पे, अब मत पूछो, स्टॉक से रिलेटेड सारा बताऊंगी, टेलीग्राम पे बताती ही हूँ। यू ऑल बी देयर, आस्क क्वेश्चंस, मोस्टली सबके आंसर मिल जाते हैं, जिनके नहीं मिले हैं वापस क्वेश्चन डाल दो, कुछ मिस हो जाते हैं। मैं क्या बताना चाहती हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हेन यू एंटर इन अ स्टॉक, कीप एन आई ऑन द स्टॉक, enter in small amount, don't enter in big amount because you are not a pro trader till now। छोटे अमाउंट में, मैं अगर प्रो ट्रेडर भी बन जाऊं, मैं हूं नहीं हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रो ट्रेडर बन जाऊं या जो भी बन जाऊं, मैं कभी बहुत अमाउंट का एक बार में नहीं खरीदने वाली। रीजन फॉर दैट, because that will give you nightmares, that will give you your sleepless nights, so don't do that thing। you always enter a small amount। उसके बाद अगर आपको वो 1 वीक या 2 वीक तक दिखता है कि the trend is good, it is intact, increase the quantity, again increase in proportions। एक बार में लिया 100 शेयर तो दूसरे बार में 2000 शेयर नहीं लेने का है, छोटा सा उसमें से 100 अगर लिया है तो आप 200 बढ़ाओ, 100 बढ़ाओ, अगेन इंक्रीज इट, थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन कीजिए, देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको मैं बताती हूँ स्टॉक की कहानी। आप लोगों को TTML की कहानी पता है, आप लोगों को मैं लॉरस लैब की कहानी बताती हूँ। IOLCP की कहानी किसी को नहीं मालूम है, लॉरस लैब हो सकता है किसी को पता भी हो, बट IOLCP की कहानी नहीं पता होगी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक जो मुझे मल्टी बैगर स्टॉक मिला, और ये स्टॉक जो था इट वाज अराउंड 300 रुपीज समवेयर। आई बॉट इट बट आई टुक इन अ चंक, क्योंकि उस समय तक मुझे आई गॉट टू नो दैट आई शुड नॉट बाय अ बल्क, so I bought it in chunk, and then I saw that the stock is unstoppable। I also make mistakes, so I should be very tight on that thing, I should be disciplined। So I saw that the stock is unstoppable, so I started adding more and धीरे 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 जैसे जैसे उसमें I started adding, stock went up, धीरे 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 it went up till 600, and my stock जो मैंने initially 100 लिया था वो add होते होते 1500 जा चुका था, and then that stock after 600 700 started consolidating। once it started consolidating, I started moving out of that stock।
एंड धीरे धीरे आई केम आउट. जब तक उसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ, आई वॉज आउट ऑफ द स्टॉक. So this is the story I wanted to tell you. This is also a part of psychology. मैं अगर किसी स्टॉक्स का नाम लेके ना बताऊं तो आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं स्टॉक का नाम लेके बता रही हूँ. This happened to me. Again, the same thing happened to me in Granules India also. Over there also, I started with 100 stocks only. That also I added around 180 or something. And 180 से वो स्टॉक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया. It became multi-bagger. You all see, ये 2020 की ही बात है, 2020 में ये भागा. And same thing happened to me in Yes Bank also. But Yes Bank में it happened unknowingly. I was not knowing about these facts कि मुझे क्या करना है. मैं उसमें add on करती गई और वो बढ़ता गया. बट उस समय की कहानी कुछ और थी. ये अभी recent examples है और यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, वो मैंने किया. यही चीज आपको सीखनी है. कभी भी बल्क में मत लीजिए. ट्राई टू ऐड इन स्मॉल स्मॉल चंक्स. एंड जब स्टॉक भागेगा एंड यू ऑल्सो कीप ऑन एडिंग, फिर देखिए उसका मजा क्या होता है एंड हाउ यू मेक वेल्थ. पैसा बनाना जरूरी है, वो आपका बन जाएगा. अब हमारे पास 5-7 मिनट और है. आप लोग में से कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. स्टॉक से रिलेटेड मैं आंसर दे दूंगी टेलीग्राम ट्विटर पे. क्या लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंड्स यू डू ट्रेडिंग मैम. देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. मेरी फंड अलग रहेगी, आपकी फंड अलग रहेगी, तो आप प्लीज इससे इन्फ्लुएंस ना होइए. दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजी थिंग. यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. हाउ टू नो दैट दिस पेनी स्टॉक इज वर्थ बाइंग एंड दिस इज नॉट. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी. यही तो आप सीखते हो. कितने पेनी स्टॉक मैंने ट्विटर पे डाले हैं जो भाग गए, तो ये तो आपको लर्न करना होगा ना. ये मैं अभी कैसे बता दूं, यहाँ पे कैसे आप समझ लोगे कि ये मैंने एक कुछ बता दिया एंड यू गॉट इट. यू कैन नॉट डू दैट, बट यस यू कैन लर्न इट फॉर श्योर. एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन है. हाउ टू नो. प्लीज आप लोग न्यूज बेस्ड स्टॉक्स लेना बंद कीजिए, रिजल्ट बेस्ड स्टॉक लेना बंद कीजिए. कभी भी ये गलती मत कीजिए, बिकॉज वेन एवर यू आर फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, यही तो चाहते हैं बड़े लोग कि आप करो. दिस इज व्हाट दे वांट यू ऑल टू डू. एक न्यूज आ गई, वो न्यूज तो सभी को पता है ना, तो सभी उस पर रिएक्ट करेंगे. एंड दिस इज व्हाट दे प्ले विथ योर साइकोलॉजी, दे आर योर माइंडसेट. आज जिंसार टेक क्यों गिर रहा था और फिर क्यों बढ़ने लगा? It should not have done like that, but it did. Why? Only reason is this, कि वो आपके साइकोलॉजी से खेलते हैं. जैसे ही न्यूज आया, व्हाट यू डू, यू बाय द स्टॉक. कुछ अच्छी न्यूज आई, बाय कर लो. वो स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, आप निकल जाओगे और बड़े आदमी उसमें घुसेंगे. बड़े आदमी तो पहले ही घुसे हुए हैं, उनको तो सारी इनसाइडर खबर पहले ही से होती है, बाद में हमारे तक पहुंचती है. तो वी हैव टू प्ले सेफ. वी हैव वेरी लिमिटेड फंड्स. प्लीज डोंट बाय ऑन न्यूज. मैं ये टेलीग्राम पे कहती हूँ, ट्विटर पे कहती हूँ, हर जगह कहती हूँ, न्यूज से मत बाय कीजिए. आपको जब भी बाय करना है, आप टेक्निकल से बाय कीजिए. एनी अदर क्वेश्चन? ओ माय गॉड, फिर से इतने क्वेश्चंस आ गए. हाउ डू यू सी मार्केट इन कमिंग मंथ? बुलिश. आई एम अ बुलिश ट्रेडर. बहुत बुलिश है. कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे, टेक्सटाइल अच्छा करेगा. सेक्टर्स में बता दूं, जो सेक्टर्स हॉट फेवरेट है, सभी के मुंह से अभी आप सुन रहे हो, वो जरूर अच्छा करेंगे. पर जब बहुत ज्यादा हाइप हो किसी चीज का, तो उसे नहीं बाय करना चाहिए. जैसे सीसीडी अभी मच हाइप है, हर दिन सर्किट लगा रहा है. प्लीज डोंट एंटर लाइक दैट. आपको मिलेगा मौका, वो नीचे आएगा तब आप लो, अभी मत लो. ओके. टेक्सटाइल इज गोइंग टू डू फैबुलस. बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गुड कंपनीज. बाय ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बाय जो भी कंपनी बैटरी से रिलेटेड, लिथियम आयन से रिलेटेड है, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, यही है अभी का हॉट टॉपिक. देन कंजम्पशन, शुगर, दीज आर दी सेक्टर्स. डू यू प्ले हीरो जीरो ऑन एक्सपायरी डे? वेरी लेस, कभी कभी. मुझे वो हीरो जीरो नहीं समझ में आता ज्यादा. एवरेज ऑन स्टॉक्स बहुत नहीं, मैं एवरेज नहीं करती, पिरामिडिंग करती हूँ. अगर मेरा स्टॉक मेरे स्टॉप लॉस के पास चला गया और मुझे कुछ उसमें ऑपरेटर्स एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो मैं एग्जिट कर लेती हूँ लॉस पे भी. दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न.
और कोशिश करनी है कि वहां तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। जब आप सीख जाओगे टेक्निकल एनालिसिस तो ये भी सीख जाओगे। मैंने बता दिया नेक्स्ट सेक्टर, नेक्स्ट डिकेड सेक्टर्स, टेक्सटाइल, कंजम्पशन, शुगर, ईवी, and I also believe in defense sector, make in India concept. How to learn technical analysis, support and design. This is very easy, सब Google पे मिल जाएगा. Any ETF stories, okay. आप ले लो निफ्टी के, निफ्टी 20 ले लो, निफ्टी तो ऊपर जाना ही है, निफ्टी 20 लेके बैठो. Any stock has stopped trading in, if any stock ends, what happens? आपका पैसा डूब गया. अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग करना बंद कर जाए स्टॉक मार्केट में तो आपका पैसा डूब गया. आज आपने देखी, हाँ मैंने देखी निफ्टी की, हीरो जीरो सब देखी पर ली नहीं. मैंने उसके पहले ही एक ट्रेड आप लोगों को दिया था टेलीग्राम पे. आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं, मोस्टली सब कुछ बता दिया है. और कोई क्वेरी हो आपको प्लीज टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. आई कीप ऑन आंसरिंग. और आई वुड बी हैप्पी अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज स्प्रेड दी वर्ड. और लोग भी जुड़ेंगे और लोग भी साइकोलॉजी सीखेंगे. आई विल ट्राई टू टेक मोर सेशंस ऑन साइकोलॉजी इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड. बट आई नीड टू नो कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं. तो आप कहीं पे भी लिखोगे, यू ऑल आर कनेक्टेड टू मी, यू ऑल नो मी. If you write these things, then only I'll come to learn that you, yes, you all are interested. So please do write somewhere so that I come to know. Post your queries. I am more happy to answer those queries. I'll try to post this video also. जो नहीं देख पाए वो अगर देख सकते हैं तो I'll try to post it on YouTube also. But आप लोग प्लीज अपने आप को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए. लर्निंग होगी तो अर्निंग भी होगी, पर पैसा रहना चाहिए अर्निंग के लिए. Okay. Thanks a lot all for listening. Okay, there are so many again questions. I think. Chalo, thanks. Kay question hai? Yeah, question from a lady. I think. Do you do household course? Definitely. कोई लड़की उससे बच नहीं सकती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या कहीं पे भी हो. And I am very happy to do everything. See, ये कोई भी लड़की छूट जाएगी क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता. इंडिया में तो नहीं हो सकता, और इंडिया के बाहर तो और भी नहीं हो सकता, वहां तो मेट्स भी नहीं मिलती. सो everyone has to do this, and this is my duty. I do this. I'm happy doing everything. I have to be in stock market. I'm happy for that. I have to do my household course. I'm happy for that. So if you have challenges, you have to face that. Don't shy. Thanks a lot. You all liked the session. Thanks a lot. I'll try and post it. Be happy, learn more things. I'll try to post more things on psychology. Thanks a lot. Chalo, bye, good night. See you all again.